नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर पटियाला से है, जहां नगर निगम में विजिलेंस विभाग ने बिल्डिंग ब्रांच के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया, जिसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों में रोष है और हड़ताल प्रदर्शन कर रहे नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि एजीपी जसपाल सिंह को विजिलेंस विभाग ने शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया, जो कि निंदनीय है। प्रदर्शनकारी मुलाजिमों ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत है, उसकी पहले जांच की जानी चाहिए और फिर बाद में कार्रवाई होनी चाहिए। ये नाजायज गिरफ्तारी है। मुलाजिमों का कहना है कि कल नगर निगम में शपथ समारोह होने वाला है। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का इस समारोह में खलल पड़े। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨਭਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫੇਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਉਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ यानी कि जो कि बेइज्जती हो रही है। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਅਗਰ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਰੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤਹਿਸ ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਏਟੀਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਐਮਟੀਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਮਗਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਫੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੜੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫੈਂਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੇ ਬਵਨਦੀਪ ਬਾਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਮਤਲਬ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ नहीं चाहते भी कोई इस तरह का प्रोग्राम हो रहे भी कोई माहौल खराब। अगली खबर सिरसा से है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र ने बड़ा खुलासा किया। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन के नाम पर चुनाव आयोग ने मुझे गुमराह किया है। ईवीएम की चेकिंग करवाने की बजाय मुझे मॉक पोल दिखाया गया। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं और इस मामले को लेकर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे रानिया विधानसभा चुनाव में 9 बूथों में रिकाउंटिंग की याचिका लगाई थी। अब मैं इस मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। वो कहते ना, इट्स जस्ट अ आई वॉश। ये सिर्फ आंखों पे पर्दा डालने के लिए आज बुलाया गया था। कुछ और सोचकर आए थे या कुछ और सोचकर हमने अप्लाई किया था, उसके लिए ये नहीं, एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई आज। ये जो C&V की प्रक्रिया जिसको बोला गया, चेक एंड वेरिफिकेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, निर्देश है, उनको भी नहीं माना जा रहा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देशों को भी नहीं माना जा रहा कि किस तरीके से चेक एंड वेरिफिकेशन होगी। हमने जब चुनाव का नतीजा आया था तो 7 दिन का समय होता है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें, मांग करें, और बाकायदा एक प्रोसीजर होता है
और बकायदा हमने 9 बूथों पर जो ऐतराज जताया, 9 बूथों की जो हमने फीस भरी, तकरीबन 4.25 लाख रुपया प्रोसीजर होता है, सारा कुछ वो जमा करवाया। हमें तो उम्मीद थी कि बहुत पहले होगा ये, लेकिन इतने समय बाद भी हम सोच रहे थे कि शायद हमने जिसके लिए अप्लाई किया वो हमारे सामने आएगा, यानी ईवीएम और वीवीपैट, जिन 9 बूथों का मैंने अप्लाई किया था वो मेरे सामने आएगा कि कितना वोट ईवीएम में पड़ा, क्या वो वीवीपैट में निकला या नहीं निकला। लेकिन जब यहां पर आते हैं तो यहां पर बिल्कुल उसके उल्टा हमें नजर आता है। वो क्या, यहां पर इन्होंने कहा कि 2 ईवीएम रोज खोलेंगे, तो 2 ईवीएम और वीवीपैट सारा कुछ लाया गया। तो एक ईवीएम जब प्रोसेस शुरू हुआ तो ये बोलते हैं कि ईवीएम का जो एक्चुअल डाटा था उसमें, जो इलेक्शन का, उसकी गिनती नहीं होगी। हाँ, उनका मिलान किया जा रहा है, पर जैसे कि बहुत लोगों ने सोचा रिकाउंटिंग नहीं है, ये वेरिफिकेशन है जी। और वेरिफिकेशन के तहत देखो, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं जी, लेकिन जो एप्लीकेंट है उन्होंने ही अपनी मेरे ख्याल से एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। तो अब इस पे आगे क्या करेंगे तो मेरे से ज़्यादा अच्छा वो बता पाएंगे जी। मेरे को तो एक कैंडिडेट होने के नाते जी वेरिफिकेशन प्रोसेस सही है, मेरी तरफ से हाजिरी होनी ज़रूरी थी, वो मैंने अपना काम किया। तो अभी प्रोसेस वो सही पाया गया सर, जो वेरिफिकेशन का? जो भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं मिली जी। जिस प्रकार से सारा प्रोसेस होता है, जिस प्रकार से इलेक्शन एजेंट्स के आगे होता है, बूथ एजेंट्स के आगे होता है, ये सारा पहले भी हो रखा है और उसी सेम प्रोसेस पे चल रहा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस चुनाव हार चुकी है तो इसी वजह से ईवीएम पर सवाल उठाती है? दिक्कत यही है, इनकी मजबूरी है। अब हुड्डा साहब खुद पर तो इल्ज़ाम ले नहीं रहे, तो अब ये ईवीएम पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब इनकी मजबूरी होगी कि भाई अगर इन्होंने आरोप लगाया है तो इनको कोर्ट भी जाना पड़ेगा, इनको लगातार मांग करनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये वेरिफिकेशन भी गलत है, तो दिक्कत इनकी नहीं है, हुड्डा साहब की मजबूरी है। अगर ये चीज़ भी क्या कहते हैं जो है इनका आरोप है गलत पाया गया, तो आपको पता है ना सारा आरोप इनके सर पर ही आना है, तो वो तो बचने के लिए कर रहे हैं ये सारा काम। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हरियाणा से है, जहां होरल जेजेपी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सोरौत ने बताया कि आज होटल में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, तो पार्टी की नीतियों को ज़्यादा से ज़्यादा पर काम करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टी में जोड़ने का काम करें। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी के गांव और शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर जल्द ही योजना बनाई जाएगी। आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर उनसे चाय पर चर्चा करना था। चौटाला जी, सूचना कोई पहले ज़्यादा नहीं थी, ऐसे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उनका मन हुआ और वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुँचने थे। क्या कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया उन्होंने? मैंने तो फिलहाल वो एक चाय टाइप एक था हमारा छोटा सा प्रोग्राम, और प्रोग्राम तो हमारे अभी कुछ दिन बाद स्टार्ट होंगे। जो गांव और शहर जो जाना है, जो बूथों पे जाना है, वो प्रोग्राम तो बाद में स्टार्ट होगा। ये तो एक घरेलू एक कार्यक्रम था, उसके तहत वो आया। कोई कार्यकर्ता को संदेश दिया हो? संदेश तो हमेशा नेता का संदेश रहता है कि भाई एकजुट रह कर चलो, अपना संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बल पर ही जो हमारे ताऊ देवीलाल जी की जो हमारी जो नीतियाँ हैं उन पर हम आगे काम करेंगे। तो अगली खबर भी हरियाणा से ही है, जहां एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि अधिकारी सरकार की जनहितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से करें ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को उनका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में अपनी समस्याओं को लेकर आने वाले प्रत्येक प्रार्थी की समस्याओं का समाधान किया जाए। यदि कोई समस्या किसी जांच या दस्तावेज पर आधारित है तो उसका भी निर्धारित समय में निपटारा करवाना सुनिश्चित किया जाए। एसडीएम मनोज दलाल स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समाधान शिविर जो लगातार 10 बजे से 12 बजे तक लग रहा है, जो सीएम साहब की एक बहुत विशिष्ट और अनूठी सी पहल है, जिसमें सारे अधिकारी वहाँ मौजूद होते हैं 2 घंटे के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों तो डीसी साहब के नेतृत्व में होते हैं, और अगर सब डिवीज़न लेवल पे हो तो कंसर्न एसडीएम उनका नेतृत्व कर रहे होते हैं और सारे अधिकारी वहाँ मौजूद होते हैं। और फरियादी आते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं और समाधान किया जाता है। तो मोटे तौर पे तो समस्याएं इसी तरह की आ रही हैं, कोई पेंशन का इश्यू हो गया है या किसी की इनकम ट्रिपल पी में बढ़ी हुई है, तो ज़्यादा तो इसी तरह की चीज़ें आती हैं। और
वो समाधान कर दी जाती है या उनको तरीका बता दिया जाता है कि आपको किस तरह से ये आगे प्रोसीड करना है, तो उस संबंधित कंप्लेनेंट को संतुष्ट करके भेजा जाता है समस्याओं के समाधान के संबंध में। कई बार गांव की गलियों के निर्माण की बात आ जाती है, कई बार पानी की दिक्कत की बात आ जाती है, कई बार जैसे अभी एक शिकायत आई थी कि भाई नहर के ऊपर एक पुल बनाया जाए दमकोरा के लिहाज से। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और लगातार यहाँ अधिकारी बैठते हैं 10 से 12, तो हम कनेक्ट होते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार यहाँ मौजूद होते हैं। किसी तरह की कोई भी समस्या का समाधान त्वरित रूप में किया जाता है। तो अगली खबर मोगा से है, जहां पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है और नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। आज मोगा पुलिस की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग अलग मामलों में दंपति समेत 6 लोगों को 800 ग्राम नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं जानकारी देते हुए एसपी डी बालकृष्ण सिंगला ने कहा कि यह नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की ओर से लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 2 FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ। FIR ਨੰਬਰ 2, FIR ਨੰਬਰ 1-6। FIR ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਵੀ ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਉਰਫ ਮੰਗੂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਦਿਕ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਸਦਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ FIR ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 6 ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 4 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੇਲ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੋਟਲ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੜੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਡਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, FIR ਨੰਬਰ 194 ਐਂਡ NDPS ਐਕਟ PS ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਥਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਬੋਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ फड़े हैगे मुक्तसर। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम में नामी कंपनी की हर्बल दवाइयों को ऑनलाइन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक कॉल सेंटर का गुरुग्राम पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। साइबर सिटी के डुंडाहेड़ा में चल रहे इस कॉल सेंटर को मुंबई और बिहार के 2 लड़के चला रहे थे। पुलिस ने इस कॉल सेंटर से 4 लड़कियों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और दवाइयां बरामद की। को साइबर पुलिस स्टेशन वेस्ट गुरुग्राम की टीम को अपने सीक्रेट सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां नकली बेच रहे हैं, जिसके ऊपर साइबर पुलिस स्टेशन वेस्ट की टीम के द्वारा डुंडाहेड़ा गांव में एक बिल्डिंग पर रेड की गई। तो रेड के दौरान यह पाया गया है कि वहां से 4 लड़के तथा 7 लड़कों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और उनके द्वारा दी वैदिक आयुर्वेदिक के नाम से एक अपना प्लेटफॉर्म उनके द्वारा बनाया गया था, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो लोग आमजन से कांटेक्ट करते थे। तो जैसे ही लोग उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी कांटेक्ट डिटेल डालते तो इस फर्जी कॉल सेंटर के लोगों के द्वारा उन लोगों से कॉल करके और उनको बातों में फंसा करके दवाइयों का ऑर्डर उनसे लिया जाता तथा उनसे दवाइयों के नाम पर पैसे ऐंठ लिए जाते थे। अभी तक प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि ये जो कॉल सेंटर है इसको अमनदीप नाम का व्यक्ति अपने एक दोस्त रंजीत के नाम से चला रहा था, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमनदीप बेसिकली महाराष्ट्र मुंबई का रहने वाला है तथा जो दूसरा जो मालिक है इसका कॉल सेंटर का रंजीत, वो बिहार का रहने वाला है, जो कि दोनों ही जो मुख्य आरोपित हैं कॉल सेंटर के संचालक हैं, दोनों ही ग्रेजुएट हैं और उन्होंने बाकी लोगों को अपने इस फर्जी काम की धोखाधड़ी के काम के लिए सैलरी पर तथा कमीशन के तौर पर उनको काम करने के लिए रखा हुआ था। तो अगली खबर यमुनानगर से है, जहां नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर निगम कार्यालय गेट पर सुबह 7 बजे निगम और दमकल कर्मचारियों ने सरकार की वायदा खिलाफी के विरोध में इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। उसके बाद धरना स्थल पर 21 कर्मचारियों को यूनियन नेताओं ने गले में फूल मालाएं डालकर 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बिठाया और भूख हड़ताल पर नगर निगम से कन्हैया, राकेश कुमार, विनोद कुमार, बलवीर, जविंदर, मुकेश, रामपाल धरने पर बैठे। आज का जो ये एजिटेशन हम कर रहे हैं, ये अपनी जो राज्य कमेटी है उसके आह्वान के ऊपर उसके आदेशानुसार
आज का एजिटेशन कर रखा है, 2 दिन का एजिटेशन है, कर्मिक अनशन। और ये इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि वर्ष 2014 के अंदर जब से भाजपा सरकार सत्ता के ऊपर काबिज हुई है तो 3 प्लान हो चुके हैं कि सरकार जो है सत्ता के अंदर है और बहुत लुभावने वादे पहले किए हुए हैं सरकार द्वारा कर्मचारियों के साथ। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करने के ऊपर और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम इसको बंद करने की मांग को लेकर के। लेकिन सरकार बातचीत के ऊपर तो बुला लेती है और कई दौर की बातचीत अपने नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के शीर्ष मंडल के साथ हुई है और बातचीत के दौरान सरकार द्वारा ये आश्वासित किया गया कि कर्मचारियों की तमाम मांगे जो हैं वो जायज़ हैं और हम जल्द से जल्द मांगे मानी गई इनके पत्र परिपत्र जारी कर देंगे। लेकिन आज सरकार की सत्ता को करीब 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक भी कर्मचारियों की सुध सरकार द्वारा नहीं ली गई। तो खबर पलवल से है, जहां संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत भारती हरियाणा के द्वारा सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल में प्रबोधन वर्ग का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने दीप प्रज्वलित कर प्रबोधन वर्ग का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संस्कृत भारत हरियाणा के प्रांत मंत्री प्रमोद शास्त्री, विशिष्ट अतिथि के रूप में सह जिला संचालक कुंवरपाल सिंह और सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समिति के उपाध्यक्ष अनिल मोहन मंगला उपस्थित रहे। देखिए, संस्कृत भाषा हमारी सभी भाषाओं की माँ है। सभी भाषाएं हमारे देश की संस्कृत से ही निकली हैं। यहाँ तक कि साउथ की जो भाषाएं हैं, तेलुगु, ये भी संस्कृत से ही निकली। तमिल में भी खूब सारे संस्कृत के शब्द हैं। तो हमारी नौजवान पीढ़ी को संस्कृत के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ सरस्वती स्कूल में 7 दिन का एक आवासीय कार्यक्रम शुरू हुआ है, जहाँ 7 दिन बच्चे यही रहेंगे। और मुझे प्रबंधन कमेटी ने बताया है कि इन आपस में जो बात भी संस्कृत में ही करेंगे। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और मैं इस सब के लिए पूरे सभी प्रबंधन टीम को बधाई देता हूं। तो अगली खबर भिवानी से है, जहां राशन कार्ड में फर्जी सदस्यों के नाम पर चाबुक अब चलने वाला है, क्योंकि सरकार ने राशन कार्डों में दर्ज सभी सदस्यों की केवाईसी करवाने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी सदस्य ने केवाईसी नहीं करवाई तो उन सदस्यों के राशन कार्ड से नाम कट जाएंगे। और इस बारे में जानकारी देते हुए डिपो होल्डर ने बताया कि डिपो में पहुंचने वाले हर व्यक्ति की केवाईसी की जा रही है और इसके बावजूद भी व्यक्ति डिपो तक पहुंचने में असमर्थ है। उन लोगों के घर पहुंचकर डिपो संचालक केवाईसी कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी केवाईसी नहीं हुई तो 15 दिन के बाद इस तरह के सदस्यों के नाम का राशन तो मिलेगा ही नहीं, साथ में राशन कार्ड से अपने आप नाम कट जाएंगे। सरकार के आदेश है, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उनकी केवाईसी अनिवार्य है, जो कि निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगेगा उसका। और केवाईसी आप पूरे हरियाणा के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर किसी भी डिपो पर जा करके निःशुल्क करा सकते हैं। केवाईसी जरूरी है। हमने केवाईसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गली गली में जा करके राशन कार्ड होल्डर को पर्सनल फोन करके भी हमने जागरूक किया है। अगर फिर भी कोई कार्ड धारक रहता है तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि वो अपनी केवाईसी जल्द से जल्द कराएं। अगर कोई केवाईसी नहीं करा तो किस तरह का दुकान भुगतना पड़ सकता है? देखो, वो तो सरकार के जो आदेश होंगे वो आगे देखे जाएंगे, लेकिन फिलहाल सरकार का आदेश यही है कि केवाईसी जल्द से जल्द 100% करें। जो लोग नहीं पहुंच रहे, जैसे कोई वृद्धा है, उसके लिए हम घर घर जाकर भी घर की सेवा दे रहे हैं, घर भी जाकर कर रहे हैं। जो नहीं आ सकता उनके लिए भी, और जहाँ अगर हम हमारे जो वार्ड के एमसी उनके घर भी बिठा दिए गए हैं, वार्ड मोहल्ले में भी जा रहे हैं, फिर भी कई लोग जानकर भी नहीं करा रहे। अगली खबर करनाल से है, जहां कूचपुरा गांव से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। व्यक्ति का नाम सुरेश था। अब फिलहाल पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो अगली खबर मोगा से है, जहां महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 40 से 50 हज़ार किसान हिस्सा लेंगे और राकेश टिकैत भी खास तौर पर पहुंच रहे हैं। और जहां पर उन्होंने कहा कि हमेशा से संघर्ष करते आ रहे हैं हम और आगे भी करते रहेंगे। आने वाले समय में अलग अलग जगहों पर महापंचायतें की जाएंगी।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सिरसा से है, जहां डबवाली में देह व्यापार का धंधा लगातार चल रहा है और डबवाली पुलिस आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है। डबवाली पुलिस लगातार इनको पहले भी नेशनल हाईवे के टॉर्च के सहारे लूटपाट के मामले सामने आए थे, तो इन सेक्स रैकेट कर्मियों के फरकन निकले थे। इसके बावजूद भी डबवाली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगली खबर अंबाला से है, जहां आज फिर घना कोहरा देखने को मिला, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त रहा। कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, जिस कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हुई। सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोगों को परेशानी हुई। उनका कहना था कि सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है और उसकी वजह से विजिबिलिटी कम है। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां जाट प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पत्रकारों का जवाब देते हुए कहा कि नियम सभी पर लागू होते हैं, इसलिए शीतकालीन अवकाश में स्कूल खोला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी प्रकार की रियायत का कोई गुंजाइश नहीं। अगली खबर अंबाला से है, जहां मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी को घेरा और उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसानों के धरने और आमरण अनशन के पीछे भी क्या आम आदमी पार्टी की सरकार कोई गेम खेल रही है या फिर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है, क्योंकि किसान पंजाब की धरती पर बैठे हुए हैं। और इसके साथ अनिल विज ने एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि किसान पंजाब की धरती पर बैठे हुए हैं और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार है। ये जो इंडिया पार्टी है, इसमें इंडिया लिखने में भी बीच बीच में गैप है। I.N.D.I.A, तो इनके अंदर तो कहीं पर भी आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए वो इनमें पहले दिन से नहीं रहा और रोज देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में जैसे जैसे जहां जहां जिसको लाभ मिलता है उस ढंग से वो कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर जगदीश सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। आज शंभू बॉर्डर पर भी एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। देखिए, ये तो पंजाब सरकार और पंजाब की धरती पर किसान बैठे। तो अगली खबर पटियाला से है, जहां केंद्र सरकार से दुखी होकर शंभू बॉर्डर पर एक किसान ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद उसके साथी उसे अस्पताल ले गए। जिसके बाद उसे पटियाला के सरकारी अर्जेंटीना अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इसके बाद इलाज के लिए उसे राजेंद्र अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अगली खबर जिन से है, जहां आईएनएलडी प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र रेणु ने कहा कि इस मामले में सर्वमित्र का मोहरा बनाया गया और रनिया आईएनएलडी का शुरू से ही प्रभाव रहा है। पहले भी कई बार आईएनएलडी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस अपना खुद का घर मजबूत नहीं कर पा रही है। और इसमें सर्वमित्र को मोहरा बनाया गया है। एक तो वहां से रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मोगा से है, जहां डीजीपी अश्विनी कपूर के दिशा निर्देशों पर नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और जिसको लेकर 2 ड्रग तस्करों से 1,54,54,000 की संपत्ति फ्रीज कर दी गई और साथ ही नशा तस्करों की चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर उन्होंने नशा बेचना बंद नहीं किया तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।